in the government hospitals was tremendous. So this is to entice the public hospitals why there is an extra value proposition for the public hospitals. Otherwise, there is already by perspective. But more importantly, I think most as a private provider, I mean, you need. I think it's not just like a blind relationship; it is a partnership. If that principle of partnership is brought in, engaged with private sector, that means if there is openness to understand each other. Private sector should understand that there is a social responsibility to the private sector. So they cannot equate the cost and the profit motive of the private sector business with the social objective of the public sector. It was very successful. I mean, you advance 50% of the claim. Why you take your own time to process the claim? But the very that 50% is required because you have to pay the vendors. You have already bought the medicines and you have to pay the vendors. So this is a simple understanding. I think that openness to understand each other, empathy to understand the private world. What are the challenges they have? The third example you have seen, the trust hospital. There the objective is social objective. But again, the trust hospitals, one of the challenges they do face is in terms of the cash flows, is in terms of the capital required to upgrade the facility or to go to the remotest place that is required. So whether the policy making can provide this comfort, especially not in the metro cities. I mean, where you need these private providers or the public providers is where they are underserved in the towns and other things. So can there be a policy space? I mean, these are some of the iterative learnings that we are having in terms of what type of public provider interaction happens. So the three things are there. I mean, one is the package
फोल्डर भी था यार, इसमें फोल्डर भी था एक। क्षिति क्षिति अवार्ड लिस्ट है मंत्रालय एवं रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार डॉक्टर मनसुख मांडविया जी का जोरदार तालियां हो जाए माननीय मंत्री महोदय जी के स्वागत के लिए। और तालियों के साथ ही स्वागत डॉक्टर सत्यपाल सिंह बघेल जी का, माननीय राज्य मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार का सीईओ, उद्योग निकाय, गैर सरकारी संगठन, शिक्षाविद, प्रौद्योगिकी के भागीदार, आयुष्मान भारत उत्कृष्ट पुरस्कार विजेता, प्रेस एवं मीडिया के सदस्य, देवी और सचिव, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा आयोजित आरोग्य मंथन 2023 के समापन सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस प्रतिम अवसर पर माननीय मंत्रीगण एवं वरिष्ठ अधिकारीगण की उपस्थिति हम सभी के लिए प्रेरणात्मक है। आपसे निवेदन है, स्वागत है। स्वागत है, सम्मान। Welcome to our esteemed dignitaries. Honorable Minister of Health and Family Welfare and Chemicals and Fertilizers, Government of India, Dr. Manshuk Mandviya ji, Honorable Minister of State for Health and Family Welfare, Professor S.P. Singh Baghel ji, Honorable Minister Health and Family Welfare, Government of Assam, Sri Keshav Mahanta ji, Member Health, Niti Aayog, Dr. V.K. Pal, additional series from states health authorities and states mission directorates, hospitals, integrators and other stakeholders of PMJY and ABDM, representatives from insurance companies, distinguished members from the private sector, representatives from media, fellow colleagues and my dear friends in the health landscape of our nation. We are also grateful to our Honorable Minister of State for Health and Family Welfare, Professor S. Khan, C. Keshav Mahanta ji,
and Dr. B.K. Paul, Member Niti Aayog. Your presence here today reflects your exceptional commitment towards improving the healthcare in our nation. The two-day event of Arogya Manthan 2023 has been filled with learnings for all of us. As we stand upon the cusp of the valedictory session, it is pertinent that we reflect on the knowledge gained, information exchange, and the idea of Ayushman Bharat, a successful initiative, and leave no stone unturned in fulfilling the commitment of our Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi ji, to ensure access to health. मुझे इससे निवेदन है कि आप पिछले 2 दिनों के मंथन पर प्रकाश डालते हुए इस सभा को संबोधित करें। सभी डिग्निटरीज को मेरा प्रणाम। ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर मनसुख मांडविया सर, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, प्रोफेसर S.P. सिंह बाघेल सर, ऑनरेबल मिनिस्टर हेल्थ, गवर्नमेंट ऑफ असम, श्री केशव महंता जी, मेंबर हेल्थ नीति आयोग डॉक्टर V.K. पॉल जी, केंद्र और राज्यों से आए हुए सभी सीनियर अधिकारीगण, SHS और स्टेट ABDM मिशन से आए हुए सभी अधिकारीगण, इंडस्ट्री में हमारे पार्टनर्स, डेवलपमेंट पार्टनर्स, मीडिया के सभी प्रतिनिधि और NHA से मेरे कलीग्स, यहाँ आए हुए सभी स्टूडेंट्स, सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। उन योजनाएं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, दोनों योजनाएं प्रैक्टिसेस का जिक्र हुआ, आपस में चर्चा हुई, क्रॉस लर्निंग हुई और हेल्थ डेटा और प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी इसके ऊपर भी चर्चा हुई और इस पर बहुत ही गहराई तक लीगल जो है टर्मिनोलॉजी उस पर भी चर्चा हुई, कैसे इसे इस्तेमाल किया जा रहा है उस पर भी चर्चा हुई। आरोग्य मंथन के दूसरे दिन एक बहुत ही क्रूशियल सेशन हुआ, अचीविंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, और कैसे उसको सस्टेन किया, क्योंकि जो राज्य अपने खर्चे पर UHC में गए हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है ये समझना कि इसको कैसे सस्टेन करना है, और उनके जो अनुभव रहे हैं वो सारे हमें सीखने को मिले। डिजिटल मिशन में एक नेशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज पर बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन हुआ, जिसमें इंश्योरेंस कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव ने भाग लिया। दोपहर Honorable Union Minister of Health and Family Welfare, Chemicals and Fertilizers, Dr. Mansoor Pandey ji, Honorable Minister of State for Health and Family Welfare, Professor S.P. Singh Baghel ji, and Family Welfare, Government of Assam, Shri Keshav Mahanta ji, Dr. Basankar, esteemed invitees, senior officials, team leaders from the state governments, members of the industry, academics and friends. 1.5 दिन के आरोग्य मंथन को आज हम समापन की तरफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट साथ थे और वहाँ दिखाया गया कि अर्ली स्टेज में जो आने चाहिए, इवन इन दैट सेंटर ओनली 20%, 25% कैंसर के मरीज हैं। अर्ली डिटेक्शन नहीं होगी तो आउटकम बेटर नहीं होंगे और पैसे भी ज़्यादा लगेंगे। तो हमें मेहनत करनी होगी कि ऑन द सप्लाई साइड, ऑन द डिटेक्शन साइड, ऑन द कवरेज साइड हमारे MCD की में प्रोग्रेस हो और उसके बारे में सोच बढ़ती रहनी चाहिए। आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हमारा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर कि ये काम खास कर किया जाएगा। एंड ऑफ कोर्स देयर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेजेस that are there at the secondary and the tertiary level. Union Minister of Health and Family Welfare, Mansoor Pandey ji, Professor S.P. Singh Baghel ji, Honorable Minister of State Health and Family Welfare, Dr. V.K. Paul, Member Niti Aayog, Additional CEO National Health Authority, Mrs. Latha Ganapati, Director NSA,
Kiran Gopal, Director NSA, senior official from Government of India, official from different state government, distinguished guests, friends from media, and ladies and gentlemen. As begun in New Delhi on this occasion of Arika Manthan 2023. It is a matter of great pride for the state of Assam, as Assam is able to achieve to the position of being the state with highest numbers of Ayushman card creation, has unveiled as to conduct 1.58 crore EKYC and distribute 50 lakh cards within a period of few months. 2023. I express my sincere gratitude to Honorable Union Minister Dr. Mandavai for his constant support in all matters related to improvement of the health ecosystem of the state, including the Aapke Door Ayushman campaign. I am being also informed that the team at the National Health Authority led by Sri Pant and his associate Dr. Basant Garg, additional CEO, Sri Rohit, has been constantly supporting the state in implementation of Ayushman Bharat PMJY and Ayushman Bharat Digital Mission. They have also personally visited Assam a number of times and reviewed the initiative of the state with all concern. I am thankful to National Health Authority for their constant support. The state government is also committed to deliver on this visionary scheme of the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, and the state will continue with its efforts religiously to achieve goals of ensuring cashless health benefits to all targeted beneficiaries. Honorable Minister Mandavai, you will be happy to learn that in addition to the initiatives of the central government in our goal towards achievement of universal health coverage, the state has also started the implementation of the Ayushman Assam Mukhyamantri Jan Arogya Yojana. Coverage of the two schemes has now led to the coverage of 84% of the state's population for cashless medical benefits. In our journey towards achieving universal health care, our Honorable Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma is the constant source of inspiration of guidance. His visionary will be a key improvement in monitoring all the development of activities related to the health department is also leading our state towards developing a sustainable health ecosystem. It has been an honor to be a part of this gathering. नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के 5 वर्ष पूरे होने पर और एबीडीएम के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस 2 दिवसीय आरोग्य मंथन
मैं पधारे देश के बहुत ही लोकप्रिय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और सहायक एवं उर्वरक मंत्री आदरणीय डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, आसाम के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री केशव महंता जी, डॉक्टर वीके पाल साहब, माननीय सदस्य नीति आयोग डॉक्टर बसंत गर्ग, अतिरिक्त मुख्य कार्याधिकारी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, देश के विभिन्न सूबों से आए हुए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारीगण, विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधिगण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारीगण, देवियों सज्जनों, पत्रकार साथियों, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी का हृदय की अनंत गहराइयों से आभार प्रकट करना चाहूँगा। उनके मार्गदर्शन में मंत्रालय द्वारा समय समय पर चिंतन शिविर और इस प्रकार के मंथन शिविर के आयोजन होते रहते हैं। विचार विमर्श और गहन मंथन ही ऐसे उपाय हैं जो हमें जन कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में सफलता की ओर ले जा सकते हैं। इस 2 दिवसीय आरोग्य मंथन में, वैचारिक मंथन में निश्चित तौर से कुछ न कुछ अमृत निकला होगा जो मानवता के काम आएगा, देश के काम आएगा। अभी प्रधानमंत्री जी ने G20 की सफलता के बाद एक कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें 5-7 हजार लोगों को याद किया गया। उन्होंने अंतिम व्यक्ति का भी आभार प्रकट किया और उनके अनुभव बताने को कहा, जिसमें उन्होंने माली से बात की, ड्राइवर से बात की, दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल से बात की, CISF से बात की। तो उन सबको एक आत्मविश्वास हुआ कि G20 की सफलता में उनका भी बड़ा योगदान है। ऐसे ही बसंत जी ने बताया कि 2 दिन में क्या क्या हुआ है, कितने टेक्निकल सेशन हुए, कितने घंटे पचास परामर्श हुए, राज्यों के प्रतिनिधिगणों ने अपनी अपनी भौगोलिक समस्याएं देखते हुए, अन्य समस्याओं को देखते हुए अपने अनुभव शेयर किए होंगे और निश्चित तौर से उससे लाभ होगा। मैं जब इस विभाग में नहीं था तब भी अपने जीवन का आयुष्मान कार्ड योजना का, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का मैं अपने हिसाब से रोज का ब्रांड एम्बेसडर था। मैं किसी शादी में जाऊं, तेरहवीं में जाऊं, भागवत में कथा में जाऊं, रसिया दंगल कव्वाली या दुर्गा पूजन में जाऊं, मैं घूम फिरा के या बर्थडे मैरिज एनिवर्सरी में जाऊं, आयुष्मान कार्ड योजना के बारे में कौन लोग इसकी पात्रता रखते हैं, और हर बैठक में मुझे कोई न कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता था जो पात्र तो होता था लेकिन उसे पता नहीं था। अगर कोई पत्रकार एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में मुझसे सवाल पूछे कि मेरे अपने 6 कार्यकाल तो बड़े छोटे हैं, आज़ादी के 75 साल में विभिन्न सरकारों द्वारा किए गई योजनाओं में आप पहला स्थान किसे दोगे? तो जब मैं लॉ एंड जस्टिस में था तब भी मैं कहता था कि मैं आयुष्मान कार्ड योजना को पहला स्थान दूंगा, और दूसरे स्थान पे दूंगा। अभी मैं एक रोजगार मेले में से आ रहा हूँ। आज 51,000 लोगों को नियुक्ति पत्र मिले हैं और आगरा में 201 लोगों को दिए। 46 लोगों से मैंने खुद बात की। इसको मैं दूसरा कहूँगा कि केंद्र सरकार ने सभी नॉन गजेटेड नौकरियों में इंटरव्यू को समाप्त कर दिया है। कईयों को लगता होगा कि ये कोई बड़ा काम है। एक बच्चे ने कहा कि आप बहुत देर से इंटरव्यू समाप्त करने में बोल रहे हैं। मैंने कहा अपने पिताजी से पूछना। अगर हमारी हम उम्र होंगे, हम लोग अपनी मार्कशीटों को पॉलीथीन में मढ़वा के रखते थे, रोजगार कार्यालय के चक्कर काटते थे,
निकले हुए फॉर्मों को भरते थे, लिखित परीक्षा भी पास करते थे। पिताजी पर देने वाली रिश्वत नहीं होती थी और जात में बड़ा नेता नहीं होता था जो चेयरमैन को भेजे जाने वाली सूची में अपना नाम निकलवा देते। तो इंटरव्यू लेने के लिए नहीं हुआ करते थे नॉन गेस्टेड नौकरियों में, निकालने के लिए होते थे। लेना है तो आगरा की स्पेलिंग बताओ, नहीं लेना है तो चेकोस्लोवाकिया की बताओ। चेकोस्लोवाकिया की बता के भी कई लोग नहीं पा पाए, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकारों में वो सूचियां भेजी जाती थी और चेयरमैन को बाध्य किया जाता था कि इनको नौकरी देनी है। ये प्रधानमंत्री जी का बड़ा काम है और भाजपा शासित सभी राज्यों में सभी अराजपत्रित नौकरियों के इंटरव्यू समाप्त हो गए हैं। पूरी पारदर्शिता के साथ आज 51,000 लोग अपनी नियुक्ति पत्र पाए हैं, जिनमें उनका 1 रुपया भी खर्च नहीं। ये नंबर 1 योजना क्यों है? क्योंकि 80 करोड़ लोग जिस देश में 5 किलो गेहूं और चावल निःशुल्क पा रहे हैं, मात्र 12,000 का और 20,000 का शौचालय के लिए 3.5 करोड़ लोगों ने आवेदन किया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास 1.5 लाख के लिए, शहरी आवास 2.5 लाख के लिए लोग रोज हम लोगों के घरों पर आते हैं। जिस देश में 9 करोड़ लोगों के यहाँ कंडे पर गीली लकड़ियों पर खाना बनता था, 9 करोड़ सिलेंडर धारक जो लोग हैं, और 55 करोड़ लोगों ने मोदी कार्यकाल से पहले बैंक की शक्ल ही नहीं देखी थी। वो अगर भी मांगते हैं, या 2-3 करोड़ जो मनरेगा के मजदूर हैं, यदि वो बीमार होते हैं तो उस दिन के पैसे नहीं मिलते हैं, ऊपर से इलाज का खर्चा। पैसे वाले लोग अपनी बीमारी के अनुकूल अपने डॉक्टर का चयन करते हैं। गरीब आदमी अपनी जेब में बचे हुए पैसों के अनुसार अपने चिकित्सक का चयन करता है। कई बार 5 दिन का एंटीबायोटिक कोर्स बताया जाता है तो वो ऑगमेंटिन और एलेग्रा नहीं खा पाता है 45 रुपये की, तो वो कुछ ऐसी गोलियां जो बिना रेफर की डॉक्टर देता है और उससे अपना इलाज करता है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि हम सबको मरना है, लेकिन मोदी जी के कार्यकाल में इलाज के अभाव में कोई नहीं मरेगा। जब से ये 5 लाख का गारंटी कार्ड, 5 लाख प्रति व्यक्ति प्रति साल पूरे परिवार का जो किया गया, तो मैं विस्तार से नहीं बोलूँगा, कल मैंने अपनी बात कही थी, लेकिन कल भी मैंने कहा था कि मैंने जरूर कुछ पुण्य का काम अपने पूर्ण जन्म में किया होगा, जो मुझे ये विभाग में सेवा करने का अवसर मिला है। और आपने भी पूर्ण जन्म में कुछ अच्छे काम किए होंगे, जो ये गरीब कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में आपकी भी भागीदारी होती। हम सड़क बना रहे होते, हम बिजली के मंत्री होते, हम पानी होते, तो हम सिविक फैसिलिटी दे रहे होते, अंधेरे से उजाले में, कच्चे से पक्के में, लेकिन हम जान नहीं बचा रहे होते। तो ये हमें चुना है भगवान ने कि हम इस काम को करें। जब चुना ही है तो क्यों ना हम पूरी शिद्दत के साथ काम करें कि जो पात्र व्यक्ति रह गए हैं हम उनको जल्दी से जल्दी बनाएं। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रोत्साहन से हमारे मंत्री जी ने जो ये सेवा पखवाड़ा 17 तारीख से लेकर के जो ये अक्टूबर तक किया है, आंकड़े अपने आप में साक्ष्य होते हैं, आंकड़े अपने आप में सनद और प्रमाण होते हैं। कितना अच्छा लग रहा है कि अभी केवल 8-10 दिन में 1,36,000 मेलों का आयोजन हो गया। 8-10 दिन में 60 लाख लोगों ने मेले में भाग लिया। 48 लाख से अधिक लोगों को मुफ्त में दवाई मिली है, भले वो सर्दी जुकाम बुखार की मिली हो, उनके काम आएगी। 40 लाख लोगों को मुफ्त डायग्नोस्टिक सेवाएं प्रदान की गई आप सब लोगों ने मिलकर। लगभग 7 लाख माताओं और बच्चों को टीकाकरण हुआ। इस दौरान 7 प्रकार की स्क्रीनिंग, जिसमें टीबी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और मोतियाबिंद की 1,55,00,000 लोगों ने ये अपने परीक्षण कराए। CSC पर भी 5500 मेलों में 9 लाख लोगों ने रजिस्टर्ड हुए। जनरल और स्पेशलिस्ट OPD में 9,50,000 मरीजों ने परामर्श लिया है। करीब 3,70,000 ब्लड टेस्ट हुए, 6,000 रक्तदान के कैंप, जिसमें 60,000 से अधिक कल तक के आंकड़े थे यूनिट ब्लड कलेक्ट किया गया है। 16 लाख
बहुत अच्छा आंकड़ा है। 16 लाख आयुष्मान कार्ड इस चंद दिनों में जब से ये सप्ताह चला है बना है, और 40 लाख आभा अकाउंट्स। और बहुत खुशी की बात है कि लगभग 8,000 से ऊपर लोगों ने अंगदान का प्लेस किया। इस विषय में विभिन्न राज्यों के अधिकारियों का, कर्मचारियों का, केंद्र सरकार का इस 6-7 दिन की ये जो सेवा है, मुझे लगता है कि हम पिछले 50-60 साल में कोई जन कल्याणकारी काम, जन सेवा देखें तो ये सर्वाधिक है। इससे अच्छा काम अभी पिछले 60-70 साल में 5 दिन के अंदर, 6 दिन के अंदर नहीं हुआ। इसके लिए मंत्री जी के सहित और सभी अधिकारियों सहित सभी राज्यों के लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा। यहाँ से एक अपील करना चाहूँगा दिल्ली राज्य को, उड़ीसा राज्य को और बंगाल राज्य को, आपकी अपनी कुछ भी योजनाएं हैं वो अच्छी बात है, लेकिन इस 5 लाख को मना ना करें, इसको शामिल करें। कई बीमारियां ऐसी होती हैं जो 5 लाख में ठीक नहीं होती हैं, तो ये इसको लागू ना करके वो गरीब लोगों का कुछ नुकसान कर रहे हैं। मैं उनसे अपील नहीं कर सकता हूँ कि अगर वो भी आयुष्मान प्रधानमंत्री PMJAY आयुष्मान योजना को लागू कर लेंगे तो मैं समझ सकता हूँ कि कुछ ज़्यादा ही अपने राज्य के लोगों का भला कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। This is a landmark year in the history of national health authority, established in 2018 to implement Ayushman Bharat PMJ. Over the last 5 years of its inception, the organization has successfully contributed to creating the dream of an Ayushman Bharat through its 2 flagship schemes, which is ABPMJ and Ayushman Bharat Digital Mission, and as well as convergence of other health schemes. Today, NHA is delighted to launch its 5th annual report. The report takes us through the marvelous 5-year journey of PMJ and 2 years of ABDM. The annual report 2022 to 2023 proudly details the milestones achieved and progress made in the past year. Divided into 6 major parts, it covers all aspects from organizational structure. करिश्मा की माता पिता को करिश्मा के जन्म के लिए PMJ योजना के तहत सहायता प्रदान की गई थी। और आज इस शुभ अवसर पर हमें यह बताते हुए अत्यंत गर्व है कि PMJ योजना के साथ साथ करिश्मा ने भी 5 वर्ष पूरे किए हैं। और करिश्मा और इसके माता पिता को आप देख सकते हैं मंच पर माननीय मंत्री महोदय जी के साथ। और निवेदन है माननीय मंत्री महोदय जी से कि आप करिश्मा और उनके माता पिता को एक सर्टिफिकेट प्रदान कर सम्मानित करें। आयुष्मान भारत की पहली लाभार्थी 5 वर्षीय करिश्मा के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और इसी के साथ अब समय में आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार वितरण का। हम हर साल विभिन्न हितधारकों जिन्होंने PMJ के विकास में अहम योगदान दिया है उन्हें उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कारों के माध्यम से सम्मानित करते हैं। आरोग्य मंथन 2023 में आज प्रदान किए जाने वाले पुरस्कार उन राज्यों को दिए जाएंगे जिन्होंने 1 सितंबर 2022 से लेकर 31 अगस्त 2023 के बीच की समय अवधि के लिए कार्य के परिभाषित क्षेत्रों में अनुकरणीय प्रदर्शन किया। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एक विजेता को पुरस्कार प्रदान किया जाए। निवेदन करना चाहिए आसाम टीम को प्रमोट कराएं और अपना पुरस्कार प्रदान करें। छोटे राज्यों के बीच एनरोलमेंट की दृष्टि से सबसे अच्छा टीम को आमंत्रित करते हैं पुरस्कार ग्रहण करने।
अगला पुरस्कार है यूटिलाइजेशन इन पब्लिक हॉस्पिटल्स पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य। 1 सितंबर 2022 Karnataka team to kindly receive the award. छोटे राज्यों टीम त्रिपुरा to kindly receive the award. अगली श्रेणी की ओर क्लेम भुगतान पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य। बड़े राज्यों के भीतर क्लेम सेटलमेंट की दृष्टि से सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य है उत्तराखंड। मोदी जी के कर्तव्य द्वारा छोटे राज्यों के भीतर क्लेम सेटलमेंट की दृष्टि से सबसे अच्छा प्रदर्शन to 31st August 23. Nagaland team to kindly receive the award. September 2022 to August 23. Representative hospitals and taken the lead in green channel implementation. We invite Team Uttar Pradesh to kindly receive the award. The next award is for the state which has taken best initiatives in scheme implementation for the period of 1st September 2022 to 31st August 2023. And the state डेब्यू सजन पुरस्कारों की अगली श्रेणी उन राज्यों को सम्मानित करेगी जिन्हें योजना के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रदर्शन किया। आयुष्मान कार्ड निर्माण और वितरण में सर्वप्रथम पर प्रथाओं के लिए इस वर्ष के पुरस्कार विजेता राज्य धोखाधड़ी विरोधी पहल कुल घुटने प्रतिस्थापन और प्रोत्साहन वितरण ऐसी Ladies and gentlemen, for best practices in public hospital utilization and disabled friendly IEC, the state receiving the award is Kerala. Inviting the team Kerala. The next award is for best practices in fund utilization from the claim reimbursement of the scheme. And the state receiving the claim adjudication और धोखाधड़ी विरोधी उपायों में सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए इस वर्ष का पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। और अब समय है आयुष्मान भारत। Andhra Pradesh at the state level ranks first in terms of highest number of digital health records linked with Aadhaar during October 2022 to September 2023 per lakh population. Andhra Pradesh जिला स्तर पर दूसरे और तीसरे स्थान पर विजेता राज्य है। The district of Visakhapatnam is linking second highest number of digital health records with Aadhaar per lakh population. And the district of Telugu is linking third highest number of digital POC के रूप में जोरदार तालियां हो जाए कर्नाटक के लिए। POC के रूप में NHA द्वारा दिल्ली में स्कैन और शेयर करना को सबसे पहले अपनाने वालों में से एक है। दिल्ली टीम को मंच पर आमंत्रित करते हैं पुरस्कार ग्रहण करने के लिए। स्कैन और शेयर के लिए शीर्ष 10 हेल्थ फैसिलिटीज अधिकतर उत्तर प्रदेश में।
देश में तीसरे स्थान पर पहुंच गया। स्कैन और शेयर का कार्यान्वयन उरी जैसे सुदूर क्षेत्र में भी लागू किया। जम्मू कश्मीर के लिए जोड़ा कार्यान्वयन और इसी के साथ सभी बड़े राज्य, छोटे राज्य इस समापन के अवसर पर मंच पर उपस्थित मेरे साथी मंत्री एसपी सिंह बघेल जी, असम के हेल्थ मिनिस्टर केशव महंतो जी, डॉक्टर कौल साहब, बसंत गर्ग, सभी राज्य से उपस्थित डेलीगेट्स, युवा दोस्तों, भाई और बहनों की डिस्कशन और डेलिब्रेशन कुछ आउटपुट लाना है। हम जहां है वहां से कुछ आगे बढ़ना है, हमें प्रगति करनी है, हमें कुछ सीखना है। ऐसी स्थिति में डिस्कशन बहुत आवश्यक होता है। जब बसंत गर्ग जी बता रहे थे, 2 दिन में कई बिंदु पर विचार विमर्श हुआ। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के पर विचार विमर्श हुआ, बेस्ट इंप्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर विचार विमर्श हुआ। अपने अपने स्टेट में कितने समय में आप ट्रेन पास करते हैं उसके पर कई लोगों को अवार्ड दिया गया। मैं मानता हूं कि ये आरोग्य मंथन से अमृत के रूप में जो हमें सफलता मिलेगी या तो आउटपुट मिलेगा, वो आने वाले दिनों के लिए, भविष्य के लिए प्रधानमंत्री जी का विकसित डेवलप्ड कंट्री का स्वप्न है, उसको सिद्ध करने में उपयोगी होगा। आपको लगेगा कि डेवलप्ड कंट्री के संकल्प को सिद्ध करने के लिए एक आरोग्य मंथन कैसे उपयोगी हो सकता है। मेरा स्पष्ट मानना है कि डेवलप्ड कंट्री में के लिए बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बेस्ट गवर्नेंस चाहिए, देश के नागरिकों का बेस्ट हेल्थ भी चाहिए। जिस देश के नागरिक स्वस्थ नहीं होते, ये देश की सोसाइटी स्वस्थ नहीं होती, और जिस देश की सोसाइटी स्वस्थ नहीं होती तो राष्ट्र कैसे समृद्ध बन सकता है। कोई भी राष्ट्र को समृद्ध राष्ट्र बनने के लिए प्राथमिकता होती है कि देश के नागरिक स्वस्थ हो, और इसलिए मोदी जी ने एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ जब देश आजादी का शताब्दी दिवस मनाता हो, यानी कि हमारी आजादी के 100 साल जब देश मनाता हो, उस वक्त हम डेवलप्ड कंट्री बने। लेकिन उसके लिए रास्ता क्या होगा? जब ये रास्ता तय करने की बात आई तो 2022 के 15 अगस्त के उद्बोधन में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम पंच प्राण के आधार पर हमारे देश को अमृत काल में गति देंगे। अमृत काल के 25 साल में देश को डेवलप्ड कंट्री बनाने का संकल्प को सिद्ध करने के लिए हम पंच प्राण लेते हैं। एक प्राण ने कहा कि हम डेवलप्ड कंट्री बनेंगे, दूसरे प्राण बताते हुए मोदी जी ने कहा कि हम गुलामी की सभी चिन्हों को मिटा देंगे, तीसरा प्राण बताते हुए कहा कि हम विरासत से पैदा लेंगे, चौथे प्राण को बताते हुए कहा कि हम एकजुट रह के, मोदी जी कई बार अपनी बात में कहते हैं कि जब एक व्यक्ति एक स्टेप आगे बढ़ता है तो व्यक्ति केवल एक स्टेप आगे बढ़ता है, लेकिन हमारे 136 करोड़ की जनसंख्या जब एक साथ, एक सोच के साथ, एक संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे तो हम एक साथ में 123 करोड़ स्टेप आगे बढ़ पाएंगे। हम एकता के साथ काम करें। एक 25 साल में देश के हर नागरिक अब
अपने स्वयं को कर्तव्य पारायण के साथ जोड़े। हम हमारा कर्तव्य को समझे। देश के लिए काम करना केवल सरकार का कर्तव्य है क्या? केवल ऑफिसर का कर्तव्य है क्या? जी नहीं, देश के 130 करोड़ की जनसंख्या का कर्तव्य है कि वो देश के लिए काम करे। हेल्थ सुविधा प्रोवाइड करके महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। और इसलिए मोदी जी ने 2018 में, आज से 5 साल पहले, आयुष्मान भारत योजना को लॉन्च किया और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की स्थापना की। ये नेशनल हेल्थ अथॉरिटी कैसे काम करेगी? हम देश को हेल्थ को एक्सेसिबल और एफोर्डेबल कैसे करेंगे? दोस्तों, मोदी जी कभी टोकन में नहीं सोचते हैं। मोदी जी हमेशा टोटल में सोचते हैं। हम एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हेल्थ सेक्टर में कैसे काम करें? तो मोदी जी ने जब आयुष्मान भारत योजना लॉन्च की तो उसमें 4 कंपोनेंट को रखा गया। 4 पिलर एक आयुष्मान भारत योजना बनाती है। एक हेल्दी इंडिया, स्वस्थ भारत। स्वस्थ भारत बनाने के लिए आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना देश के 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक की मुफ्त इलाज की गारंटी। दोस्तों, छोटी बात नहीं है। जब ओबामा का शासन था यूएसए में, और उस वक्त उन्होंने अमेरिका के 10 करोड़ लोगों को हेल्थ सिक्योरिटी देने के लिए ओबामा केयर योजना लॉन्च की थी। वह सारी दुनिया में उसकी वाहवाही हुई, उसकी प्रशंसा हुई। दोस्तों, मोदी जी ने देश के 12 करोड़ लोग, 12 करोड़ फैमिली, यानी कि 60 करोड़ लोगों के लिए 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। दोस्तों, छोटी बात नहीं है, ताकि एक गरीब और सामान्य वर्ग के लोगों को हेल्थ एक्सेसिबल हो। मैंने आजादी के बाद ऐसी कोई योजना नहीं देखी है जिसमें सोशल इक्वलिटी, सामाजिक एकता, आर्थिक असमानता को दूर करके सभी को एक समान दृष्टि से देखते हैं। दोस्तों, मैं एक बार अपोलो में एक लास्ट वीक में ही आरएमए अस्पताल में प्रारंभ किया गया। दोस्तों, मैं मानता हूं कि एक ऐसी योजना है जिस योजना के लाभार्थी, मैं एक बार रक्सौल गया और रक्सौल के लाभार्थी सम्मेलन में एक महिला ने आयुष्मान भारत योजना उसके लिए कैसे आशीर्वाद रूप हुई उसके बारे में अनुभव कथन किया था। मंच पर बैठे लोगों के आंखों में भी आंसू निकल आए। दोस्तों, ऐसी योजना से हम हेल्थ को एक्सेसिबल कर रहे हैं। हम योजना से हेल्थ को आयुष्मान भारत योजना का दूसरा पिलर है, देश में 1,70,000 हेल्थ वेलनेस सेंटर बनाया गया। वहां मुफ्त मेडिसिन, मुफ्त इलाज, मुफ्त स्क्रीनिंग, वेलनेस के लिए भी। और यहाँ हमारे एसपी सिंह बघेल जी बता रहे थे 1.5 लाख से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर हेल्थ मेला लग रहा है। ये हेल्थ मेला में लोगों का स्क्रीनिंग रेगुलर हो जाए और जब प्राइमरी स्टेज पर ओरल कैंसर हो, सर्वाइकल कैंसर हो, ब्रेस्ट कैंसर हो, ऐसे कैंसर में जब फर्स्ट स्टेज में होता है तब स्क्रीनिंग हो जाने से हम व्यक्ति का जीवन को बचा सकते हैं। और इसलिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के द्वारा हेल्थ को एक्सेसिबल कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हमने कभी टोकन में नहीं सोचा, जैसा मैंने बताया। हमें हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए, वहां डॉक्टर चाहिए, तो देश में मेडिकल की सीट 54,000 9 साल पहले थी। ये 9 साल में वो 54 से 1,07,000 आज के दिन में हो गए, यानी कि डबल हो गए। मेडिकल कॉलेज डबल हो गए, पीजी की सीट डबल हो गए, ताकि देश के डॉक्टर को विदेश में पढ़ने जाने की नौबत न आए। यहाँ ही उसको एजुकेशन का, मेडिकल एजुकेशन का अवसर मिले।
ऐसे 50% ऑफ द क्लेम अमाउंट उसके अकाउंट में चला जाता है। तो ये यूनिक इनिशिएटिव है NHA का, जिसको यूपी ने फॉलो किया है और यूपी में सक्सेसफुली ये आयोजन हो रहा है, जिसकी वजह से ज़्यादा अस्पताल इसके साथ जुड़ रहे हैं एंड दे आर वेरी हैप्पी विद द पेमेंट मोड जो हम लोग कर रहे हैं। तो उसकी वजह से ये हमें दिया मिला था। दूसरा जो कैटेगरी है वो ABDM जो है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, उसके अंतर्गत किया गया है, जिसमें कि सर्वाधिक आभा IDs क्रिएट करने का हमको अवार्ड मिला है और मैक्सिमम लिंकेजेस जो हॉस्पिटल के साथ हुई हैं उसका अवार्ड।